गाजियाबाद की हाई राइज रियल एस्टेट मार्केट्स को समझें तो यहाँ की माइक्रो मार्केट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट मार्केट ईस्ट दिल्ली के बिल्कुल पास सिचुएटेड है, जिसमें वैशाली, वसुंधरा एंड इंदिरापुरम को काउंट कर सकते हैं, जो पूरी तरह से स्टेबल मार्केट है। यहाँ किसी भी तरह के नए डेवलपमेंट्स का स्कोप काफी कम है। सेकेंड मार्केट है राजनगर एक्सटेंशन, जहां पिछले 2 सालों में डिमांड काफी बढ़ी है। इस डिमांड का मेजर रीजन सेकेंडरी मार्केट मतलब रीसेल की यूनिट्स में मूवमेंट्स की वजह से है। गाजियाबाद की थर्ड मार्केट, जो कुछ सालों पहले गाजियाबाद की सबसे पॉपुलर मार्केट्स में से एक थी, वो है क्रॉसिंग रिपब्लिक, जिसमें फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि नए डेवलपमेंट्स के लिए लैंड्स की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है और जो लैंड्स अवेलेबल भी है यहाँ, उनमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स शुरू से ही रहे हैं। Crossing Republic is facing severe traffic issues due to bottleneck at both ends near Shaberi and towards the Delhi-Meerut Expressway, leading to significant delays for commuters. बाकी 2 बड़ी मार्केट्स में से एक है सिद्धार्थ विहार, which is located next to इंदिरापुरम and near Noida Electronic City Metro Station, and दूसरी है इसी रोड पे आगे जाकर NH24 और Delhi-Meerut Expressway के साथ डेवलप होती हुई टाउनशिप such as Wave City and Aditya World City. इन दोनों ही मार्केट्स में मूवमेंट काफी है पिछले कुछ मंथ्स में। इट सीम्स लाइक द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेव सिटी एंड सिद्धार्थ विहार हैव कॉट द अटेंशन ऑफ द ब्रॉडर मार्केट ड्यू टू द मेजर लॉन्चेस बाय प्रोमिनेंट डेवलपर्स। वेव सिटी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी स्पेशली फॉलोइंग द गौर ग्रुप्स लेटेस्ट प्रोजेक्ट गौर NYC। मीनवाइल सिद्धार्थ विहार इज इन द स्पॉटलाइट विद द अपकमिंग लॉन्च बाय द रियल एस्टेट जायंट Prestige Group. At White Hat Realty, we have been following the Prestige Group project since the very beginning. सुभाष गुलाटी ग्रुप एंड प्रेस्टीज ग्रुप की इस लैंड की डील के बाद से वी वर वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ दिस ह्यूज प्लानिंग। We have already created 2 videos with updates on the project, so be sure to check those out for the latest information. Welcome to another episode of Realty Unplugged by White Hat Realty. Today we are focusing on answering the most frequently asked questions about the Prestige Group upcoming project. अगर आपका इंटरेस्ट Prestige Group के इस प्रोजेक्ट में है, then this video is for you. वीडियो के एंड तक you will have clarity on most of your queries. So stay tuned until the end of the video to make the most out of this video. हम सभी important aspects को cover करने की कोशिश करेंगे, but if you miss anything about the project, feel free to call us at the number displayed on the screen for details and clarity. So let's dive into the answers to your queries. We have received tons of calls asking about the expected launch date of the project. We'd like to clarify that the date hasn't been decided yet. And there is a reason for that. Prestige Group के इस project के land के लिए deal March 2024 में हुई. In order to obtain RERA and necessary approvals, project के land के deal के बाद से बहुत सारे steps होते हैं, जिसके लिए काफी सारा time चाहिए होता है. The process of obtaining RERA approval typically takes at least 6 months from the time the developer begins site planning and securing necessary approvals. This includes steps like obtaining a soil testing report, an environmental impact assessment NOC, airport authority NOC for height restrictions, and other necessary approvals from relevant authorities. इन सभी NOC के साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड साइट मैप अप्रूवल के लिए डेवलपर को लोकल अथॉरिटी के पास अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, जो प्रेस्टीज ग्रुप के केस में यूपी आवास विकास है। वहां से अप्रूवल्स के बाद मैप्स एंड ऑल द मैंडेटरी NOC आर सबमिटेड टू RERA ऑफिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। RERA usually takes up to 45 days to confirm the project registration process if everything is in order. Once approved, the developer becomes eligible to launch the project. So coming back to the original question, project के launch date project के RERA approval के बाद ही decide की जा सकती है, क्योंकि किसी भी steps के लिए deadline set करना developer के control में नहीं होता है. According to the information we have, the project will be launched at least 15 days after receiving RERA approval. This time allows the developer to process the responses based on the priority number assigned post-RERA. Given the current state of approvals, we anticipate RERA approval by the end of October, with the project launch likely happening sometimes in November. If someone is providing an exact date for the project launch, it will be just a guesswork. सिद्धार्थ विहार एज अ लोकेशन हैज सेवरल ड्रॉबैक एंड मेनी अपसाइड्स टू. हमने सिद्धार्थ विहार एज अ लोकेशन ऑलरेडी रिव्यू किया है कुछ टाइम पहले. उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सिद्धार्थ विहार यूपी आवास विकास के अंडर आता है, इस वजह से लोकेशन की प्लानिंग GDA के कंपैरेटिवली बेहतर है.
सिद्धार्थ विहार में लो राइज, हाई राइज एंड प्लॉटेड डेवलपमेंट्स का एक अच्छा मिक्स है और इस पूरी 703 एकर्स की प्लानिंग में HIG, MIG, LIG एंड EWS का सही बैलेंस्ड रेशियो है। लेकिन यूपी आवास विकास एज एन अथॉरिटी बहुत एक्टिव नहीं है, स्पेशली सिद्धार्थ विहार रीजन में। यहाँ पर इसलिए प्लानिंग का एग्जीक्यूशन बहुत ही पुअर रहा है बिल्कुल शुरुआत से। 1998 में प्लान्ड इस टाउनशिप में डेवलपमेंट के नाम पर ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि पूरे सिद्धार्थ विहार टाउनशिप में काफी ब्रॉड रोड्स, ओपन स्पेसेस एंड ग्रीन स्पेसेस का अच्छा मिक्स प्लान्ड है। उम्मीद करते हैं अगले 5 से 7 साल में यहाँ की सूरत बदल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स अब इस एरिया में एक्टिव हो चुके हैं। रही बात प्रेस्टीज ग्रुप के प्रोजेक्ट की लोकेशन की, तो ये लोकेशन सिद्धार्थ विहार का पार्ट होने के बाद भी सिद्धार्थ विहार से बाहर है। सिद्धार्थ विहार के इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेस्टीज ग्रुप के अपकमिंग सिटी कॉन्सेप्ट में डेवलप होने वाले इस टाउनशिप का डिपेंडेंसी ऑलमोस्ट जीरो है। One important detail is that the water supply in Siddharth Vihar will come from Ganga Water Treatment Plant with the substation located within Siddharth Vihar itself. प्रेस्टीज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के ऑपोजिट NH24 में एक यू टर्न है, जिसे आप नोएडा एंड दिल्ली के लिए यू टर्न लेते हो। यहाँ टर्न लेने के लिए पीक टाइम पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, which is one of the setback for the project location. प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन को लेकर भी हमें ढेरों सारे कॉल्स एंड व्हाट्सएप रिसीव हुए हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारे मिसकंसेप्शंस मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। So let us make you aware of that also. प्रोजेक्ट में मेजॉरिटी ऑफ अपार्टमेंट्स 3 and 4 BHK के होंगे एंड 2 and 5 BHK अपार्टमेंट का रेशियो प्रोजेक्ट में लेस देन 15% होना एक्सपेक्टेड है। सो अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट के लिए इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो प्लीज नो दैट द कंपटीशन फॉर दीज 2 BHK अपार्टमेंट्स विल बी वेरी हाई ड्यू टू द वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द प्रोजेक्ट। अपार्टमेंट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन एक प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट को फोकस में रख के प्लान की गई है। पीपल ऑफन आस्क इफ द डेवलपर विल हैव इटालियन मार्बल flooring in the apartment or not. The answer is no. It's unlikely that all the units will have Italian marble, though the developer may offer high-end specification, including Italian marble, in 1 or 2 select towers. Most of the project will feature high-quality tile flooring options only. Project में VRV and VRF options को लेकर भी काफी सारे questions रहे हैं। The answer to this question is also no. VRV एंड VRF जैसे स्पेक्स की अवेलेबिलिटी के चांसेस नहीं है। वुडवर्क में भी मॉड्यूलर किचन प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट होने के चांसेस है। रेस्ट एवरीथिंग विल बी द सेम फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ सिमिलर कैटेगरी। सो हाई एंड स्पेसिफिकेशंस एंड फर्निशिंग की एक्सपेक्टेशन है आपको प्रोजेक्ट से, तो दैट माइट डिसअपॉइंट यू अ बिट। देन व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और प्रेस्टीज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट से विसिनिटी के दूसरे प्रोजेक्ट्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो वी हैव द आंसर्स फॉर यू। प्रेस्टीज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट में आप हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट टू विदाउट अ डाउट। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए L&T जैसे कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रोजेक्ट में इंटरनल फिनिशिंग की अगर हम बात करें, देन बीट टाइलिंग, बीट वुडन फ्लोरिंग और वॉशरूम फिटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम द टॉप ऑफ द ब्रांड्स। Building के outer elevations and designs are expected to be one of the best in Delhi and NCR. प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बन रहे सभी प्रोजेक्ट्स के कंपैरेटिवली लो डेंस होगा। बेस्ड ऑन द टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन वी हैव, द डेवलपर मे नॉट यूटिलाइज 100% of the FAR, that is floor area ratio. In our last video we have mentioned that the tower will go up to 50 floors, which will reduce ground coverage and significantly improve the project's open space ratio. फर्दर प्रोजेक्ट की डिटेल इनसाइट्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल में प्रेस्टीज ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के लिए लास्ट वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को लेकर काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं मार्केट में। सिद्धार्थ विहार में सिचुएटेड प्रोजेक्ट्स की मिनिमम बेसिक सेलिंग प्राइस 7,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है एंड मैक्सिमम 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक की प्राइसिंग यहाँ के प्रोजेक्ट्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही इंदिरापुरम में सिचुएटेड मोस्टली पुराने प्रोजेक्ट्स जो रेडी टू मूव इन कंडीशन में है, उनकी प्राइसिंग 8,000 रुपीज के आसपास की है। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे ATS एडवांटेज, एपेक्स डी रियो जैसे प्रोजेक्ट्स में रीसेल का प्राइस आपको 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक भी मिल जाएगा। प्रेस्टीज के अपकमिंग प्रोजेक्ट की प्राइसिंग के लिए 8,000 से 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस मार्केट में कम्युनिकेट हो रहा है, बट चांसेस आर वेरी लेस दैट इवन आफ्टर बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग प्रोजेक्ट्स प्राइसिंग, प्रेस्टीज अपने इस ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से कम कोई भी प्राइस इंट्रोड्यूस करेगा। वी एंटिसिपेट दैट द प्राइसिंग टू रेंज फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट टू एज हाई एज 11,500 to 12,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। गौर ग्रुप का रीसेंट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो सिद्धार्थ विहार से लगभग 10 किलोमीटर आगे वेव सिटी में हुआ है, वहां पर प्री लॉन्च प्राइस गौर ग्रुप के गौर NYC का 7,500 रुपीज का फ्लोट किया गया है।
लेकिन गौर ने इस प्रोजेक्ट के एडिशनल चार्जेस की लिस्ट काफी लंबी रखी है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का इफेक्टिव प्राइस इंट्रोडक्टरी प्राइस से काफी ऊपर पहुंच जाता है, दैट इज मिनिमम ऑफ 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इन कॉन्ट्रास्ट, प्रेस्टीज ग्रुप typically offers floor-wise box pricing, and for the other charges, they are limited to essentials like car parking, club membership, IFMS, and GST. प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है एक टाउनशिप के कॉन्सेप्ट पर और 62.5 एकर्स के लैंड पार्सल में प्रोजेक्ट रेडी होगा। प्रोजेक्ट काफी बड़ा है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग द प्रोजेक्ट बी लॉन्च्ड इन फेजेस, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस विद दिस अपकमिंग प्रेस्टीज ग्रुप सिटी फॉर्मेट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड जरूर किया गया है टू फैसिलिटेट ईच विंग बेटर विद देयर ओन पार्क्स एंड क्लब हाउसेस टू ऐड कन्वीनियंस एंड प्रैक्टिकलिटी टू द प्रोजेक्ट। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का शुरू होना एंड प्रोजेक्ट की पोजीशन ऑलमोस्ट एक साथ होना एक्सपेक्टेड है। The gap between the position of the first and last hour in the project will be a maximum of 6 months. प्रोजेक्ट में 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK के वेरिएंट्स हो सकते हैं, जिसमें 2 BHK के लिमिटेड अपार्टमेंट्स एंड 5 BHK के डुप्लेक्स और सिप्लेक्सेस भी हो सकते हैं। There has been speculation that the project will also include villas, but that's not the case. The entire development will consist of high-rise buildings apart from the commercial and institutional developments within the township. प्रेस्टीज ग्रुप के मोस्टली प्रोजेक्ट्स में यूनिट के बीच में साइजेस का वेरिएशन काफी कम होता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइप्स फॉर एन अपार्टमेंट कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 3 to 7. फॉर एग्जांपल, इफ द एंट्री लेवल 3 BHK अपार्टमेंट इज 1650 स्क्वायर फीट, यू माइट फाइंड मल्टीपल वेरिएशन विद स्लाइट डिफरेंसेस इन द फ्लोर प्लान एंड एरिया. द नेक्स्ट इमीडिएट साइज कुड बी 1675, 1695 and so on. The tentative size of the 2 BHK apartment in this project is approximately 1250 square feet, with only slight changes in overall space in terms of square feet. For the 3 BHK units, the size will vary between 1600 to 2300 square feet, while the 4 BHK units will have 2400 to 3200 square feet. The 5 BHK units will make up to 5 to 6% of the project's total capacity, are expected to range between 3500 to 4000 square feet. All these sizes are tentative. In the end, there might only be around 10 main types of units, but due to the slight variations within each type, the total number of unit configuration could reach up to 30 or even more. One of the most valid and reasonable questions prospective buyers ask is about the early bird advantages in the project. Early bird advantages can be understood in 2 ways. The project is expected to have allotment in 3 phases, approximately 1500 units in phase 1, another 1500 in second, and the remaining units in the third. Early bird will likely benefit from preferential pricing in the first 1500 units. This means that the first 1500 buyers will enjoy price advantages. The application and allotment process will be conducted online post-RERA. Based on the priority number you receive, you will be able to choose your unit from the available options online. Thus, those who apply earlier will have a better selection of units compared to those who apply later. That's all for today's video. If you have any queries about the project, please contact our team. The WhatsApp link is provided in the description section. Reach out to us using #PrestigeSiddharthVihar. We'll get back to you promptly. Also subscribe to our channel if you haven't already. We promise to keep you updated with the latest happening in the real estate market. Catch you in the next video. Take care and see you soon.